नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का झमेला खड़ा होता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के तरफ से यह दावा कर दिया गया है कि हमारे पास सिटिंग 16 सीटें हैं और इससे कम पर कोई समझौता नहीं करने वाले, हम अपने सीटों को नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद ये चर्चाएं चल रही हैं कि इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बवाल होना तय है। राजद भी ज्यादा खुलकर भले ना बोले, लेकिन जदयू के जिस तरीके के बयान आ रहे हैं नेताओं के, उस पर अंदर ही अंदर पार्टी के शीर्ष नेता नाराज हैं। लेकिन इसी बीच सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा बिहार पहुंचे। राजधानी पटना में बीते दिन शाम को वो सीएम आवास में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और उसके बाद आज सुबह उनके तरफ से यह जानकारी दी गई कि नीतीश कुमार के साथ उनकी जो बैठक रही, मुलाकात रही, वो काफी ज्यादा सकारात्मक माहौल में हुई है और सीट शेयरिंग का कोई झमेला खड़ा नहीं होगा। लेकिन एयरपोर्ट जाने से पहले आज वो राबड़ी आवास भी पहुंच गए और वहां पर उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात किया। कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर जिस तरीके से जेडीयू की तरफ से लगातार दावे किए जा रहे हैं और सीटों पर समझौता नहीं करने की बात कही जा रही है, अपनी सीटों को नहीं छोड़ने की बात कही जा रही है, इस पर आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व जो है वो थोड़ा नाराज है। और लेकिन आज डी राजा से मुलाकात हुई है और इसमें बहुत सी समस्याएं जो खड़ी हो रही हैं उसको सुलझाने की बात कही गई है। लेकिन राबड़ी आवास से जब डी राजा बाहर निकले, उनसे कई सवाल पूछे गए। सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनेंगे या नहीं बनेंगे, जेडीयू जो दावा कर रही है उसमें इंडी गठबंधन को कितना नुकसान हो सकता है, इन तमाम सवालों को लेकर उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया है वो पहले आप सुनिए। लालू जी is one of my very old friends, and we worked together during many crisis periods in our history. So when I am in Patna, I thought I must go and give my salutes to Mr. Lalu ji and talk to him. And it so happened when I met Mr. Lalu ji, Mr. Tejasvi also came there. We talked to each other. We said in Bihar we all should work together, fight together in the elections in order to defeat BJP. And our primary objective, primary concern is to save the country and its future. If that has to happen, we should all unitedly fight and defeat BJP. Accordingly, everything will have to be sorted out, settled. This is what in general. No, seat sharing we did not discuss in concrete manner. We just said we all are part of India Gठबंधन. We all should sit together and work out what should be the seat sharing. And we should fight together. CM से भी मिलने आप गए थे? CM also. BJP is saying there is no vacancy of PM. Huh? BJP is saying That BJP claims so many things. Mr. Modi will come back for third term. Mr. Modi will hoist the national flag for third term. Mr. Modi will make India's third largest economy in the world when India is having such a huge foreign debt. So don't go by what BJP is claiming. These are all empty claims. These are all empty claims. When India alliance is emerging strong and stronger and emerging as an alternative across the country, BJP is getting jittery. Mr. Modi is getting desperate. Mr. Amit Shah is getting desperate. They resort to all rhetorics and demagogy, and they try to abuse the opposition. What they do in practice is something else. The way they use ED and all central agencies to target opposition parties and intimidate opposition leaders. People are taking note of all these things. People have their own experience looking at the disastrous misrule of Mr. Modi. So people are determined. People are really people have made up their mind, and they are going to
throughout BJP from power. सीपीआई कितने सीट पे मानेगी? सीपीआई को कितनी सीट चाहिए? डी राजा All these things will be decided collectively at an appropriate time. Sir, how many seats? No, it is not too late. No, it is not too late. Yeah, political parties are matured enough. They have their own rich experience. Sir, how many seats And, demanding CPI? No, that we will discuss. Our state leadership will discuss. When, तो अभी आप सुन रहे थे सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा को जिस तरीके से इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी बखेरा खड़ा होता दिखाई दे रहा है जेडीयू के नेताओं के दावे के बाद। उसके बाद राबड़ी आवास में लालू यादव, तेजस्वी यादव और बीते दिन शाम को नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद इनके तरफ से क्या कुछ कहा गया वो आपने सुना। लेकिन आपको बताएं कि सीपीआई भी बिहार में लोकसभा के सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। बीते चुनाव में भी वो कन्हैया कुमार को बेगूसराय से उम्मीदवार बनाई थी, लेकिन वहां पर राजद ने अपना उम्मीदवार उतार दिया था। तो गठबंधन का हिस्सा सीपीआई बीते चुनाव में नहीं बन पाई, लेकिन इस बार इंडी गठबंधन बना है। वाम दल जो है इस बार कांग्रेस, जेडीयू और आरजेडी के साथ में है। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ने 16 सीटों पर, अपने सिटिंग सीटों पर जिस तरीके से कोई समझौता नहीं करने की बात कही है, उसके बाद जरूर बखेरा खड़ा हुआ है। और ऐसे में देखना होगा कि सीपीआई किस तरीके से इस इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग के मामले को सुलझा पाती है और खुद को कितनी सीटें दिला पाती है, क्योंकि बहुत बड़ा जनाधार बिहार में उनका नहीं माना जाता है। महज 2 विधायक उनके पास हैं, लेकिन कहा जाता है कि बेगूसराय लोकसभा पर इनकी दावेदारी मजबूत रहती है और इस बार भी वहां पर उम्मीदवार उतारने की ये तैयारी में है। 1-2 सीटें इनके तरफ से और जो है वो राजद के सामने रखी गई हैं, लेकिन ऐसा उम्मीद है कि सीपीआई को 1 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगी। कन्हैया कुमार अब कांग्रेस में चले गए हैं, तो कौन सा अन्य नेता इस बार सीपीआई से लोकसभा लड़ेगा, इसकी भी कई तरह की चर्चा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला सुलझेगा तो सुलझेगा कैसे। नीतीश कुमार को पीएम फेस बनाने की बात भी बहुत कुछ जेडीयू नेताओं के तरफ से कही गई, लेकिन इस पर भी अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, ना ही संयोजक के मुद्दे पर। तो इंडी गठबंधन में काफी समस्याएं खड़ी हुई हैं, लेकिन डी राजा आए हैं, नीतीश कुमार से भी मिले, लालू यादव से मिले, तेजस्वी यादव से मिले। कितना समस्याओं को सुलझा पाए हैं ये तो वक्त आने पर पता चलेगा। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।